بلوچستان کے عوام کے حقوق کے لیے ہمیشہ لڑتے رہے ہیں، ان کی آواز ہر فورم پہ بلند کرتے رہے ہیں اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنے تمام وسائل کو ہم بروئے کار لاتے رہے ہیں۔ ہم نے اس صوبے میں اور اس ملک میں ہمیشہ ہر غیر آئینی، غیر قانونی، غیر جمہوری عمل کی مخالفت کی ہے، اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے اور عوام کے سامنے بھی، آپ حضرات کے سامنے بھی، اسمبلی کے فلور پہ بھی ہم نے غیر آئینی اور غیر جمہوری اقدامات کی مذمت بھی کی ہے اور اس کے سامنے کھڑے بھی ہوئے ہیں۔ اب ہماری شنید میں آیا ہے کہ ریکوڈک جو بلوچستان کا بہت بڑا سرمایہ ہے، اس کے بارے میں غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کے اس کے وسائل سے بلوچستان کے عوام کو محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ریکوڈک فار دیٹ پرپز سیندک یہ بلوچستان میں معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور انہی کے وسائل سے بلوچستان کے غریب عوام اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے۔ جب ان کے وسائل سے بلوچستان کے لوگ محروم ہوں گے تو یہ ایک ظلم ہوگا، یہ بربریت ہوگی جس کی ہم کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ آپ کے علم میں بھی ہے کہ ریکوڈک کے بارے میں بھی بلوچستان کے عوام نے بلوچستان اسمبلی کے توسط سے قرارداد بھی پاس کی ہے اور اسی طرح سیندک کے بارے میں اسمبلی کی کمیٹی بھی بنی ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس کمیٹی کی پھر آگے میٹنگ نہیں کی گئی اور نہیں بہرحال اس سے اب تک کوئی ایسی بات نہیں آئی جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ بلوچستان کے لوگوں کو ان کے حقوق کے طرف، ان کے حقوق کی ضمانت دینے کا کوئی قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارا پرزور مطالبہ ہے کہ ریکوڈک کے بارے میں مرکزی سطح پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو بھی پلاننگ ہے، اس کا ان کیمرہ بلوچستان اسمبلی میں بلوچستان کے عوام کو ان کے منتخب نمائندوں کے ذریعے ان کو بریفنگ دی جائے تاکہ پتہ چلے کہ بلوچستان کے عوام کے حقوق کی کیا صورتحال ہے، کہیں پہ ڈاکہ تو نہیں ڈالا جا رہا۔ دوسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ ریکوڈک کے بارے میں مرکزی سطح پہ، فیڈرل گورنمنٹ لیول پہ یا کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ بلوچستان کے عوام ہی اس کے مالک ہیں، ان کی رضامندی کے بغیر کوئی ایگریمنٹ، کوئی ڈیٹ، کوئی گفتگو ناقابل قبول ہے۔ تیسری بات جو ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ خالصتاً بلوچستان کے عوام کی ملکیت کا مسئلہ ہے، جس سے بلوچستان کے عوام کے علاوہ کسی دوسرے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس حق کی ڈکلیریشن کے لیے ہمارا مطالبہ ہوگا اور اس کے لیے ہم ہر فورم پہ آواز بلند کریں گے۔ بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ مختصر
وقت میں بڑی تعداد میں آج اس پریس کانفرنس کی کوریج کر رہے ہیں. میرے خیال میں ریکارڈنگ کا جو مسئلہ ہے وہ بلوچستان کا ایک سرمایہ ہے ریکارڈنگ، اور اس وقت سے لے کر آج تک جس طرح ریکارڈنگ کو بار بار کوشش کی جاتی ہے خصوصاً بیچنے کی، اور جس طرح ہماری وفاقی حکومت ہے اور خاص کر اس سے پہلے بھی وزیر اعظم پاکستان نے اس قسم کا ایک اس نے تقریر بھی کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم ریکارڈنگ کو بیچ کر پاکستان کے قرضے اتاریں گے. تو ریکارڈنگ جو ہے وہ بلوچستان کا سرمایہ ہے، اور بلوچستان کے عوام کو اعتماد میں لیے بغیر ریکارڈنگ کے بارے میں کوئی فیصلے بھی کرنا میرے خیال میں بلوچستان کے عوام اور بلوچستان کی سیاسی پارٹیاں اس کو قبول نہیں کریں گے. اس سے قبل جو سیندک کے حوالے سے جو معاہدات ہوئے، اور آج سیندک میرے خیال میں اپنی وہ اختتام کو پہنچ رہا ہے، لیکن بلوچستان کو اس میں سے بمشکل 2% بھی بلوچستان کے عوام کو نہیں مل رہا ہے. اتنے بڑے سرمایہ جو بلوچستان کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری سرزمین کو میرے خیال میں معدنیات سے مالا مال رکھا ہے، اور اتنے وسائل کے ہوتے ہوئے آج بلوچستان کی حکومت اور بلوچستان کے عوام اپنے لیے ایک بجٹ بنانے کے لیے بھی میرے خیال میں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ خالصتاً اس صوبے کا ہے، اور اس صوبے کے عوام کو اعتماد میں لیے بغیر اگر وفاقی سطح پر اس قسم کا کوئی فیصلہ ہونے جا رہا ہے تو میرے خیال میں ہم اسمبلی میں اس کے متعلق قرارداد بھی لائیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ سب سے پہلے بلوچستان کے عوامی نمائندوں کو ان کیمرہ جو ہے اگر اس قسم کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے ان کو بریفنگ دیا جائے کہ وفاق سیندک کے حوالے سے کیا فیصلے کرنے جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جیسے ملک صاحب نے اور ملک نصیر صاحب نے کہا کہ ہماری شنید میں یہ ہے کہ کل ریکارڈنگ کے حوالے سے شاید اسلام آباد میں کوئی فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اور اس میں ہم ایک چیز واضح کر دیں، آپ تمام صحافی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، کہ اس پہ ریکارڈنگ اور سیندک کے حوالے سے بلوچستان اسمبلی کی قراردادیں بھی موجود ہیں، اور اس میں سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی ایک تفصیلی جو ایک فیصلہ بھی آ چکا ہے، اور اس میں جو بلوچستان کے شیئرز ہیں ان کا کسی حد تک تعین بھی کیا جا چکا ہے کہ اس سے کم بلوچستان کے شیئر کسی صورت نہیں ہونے چاہیے. لیکن کل جس طریقے سے شاید اسلام آباد میں کوئی اس پہ کوئی ریکارڈنگ کا ایک دفعہ پھر سودا جو ہونے جا رہا ہے، اس میں سب سے پہلے تو میں ایک چیز آپ کو واضح کرتا چلوں کہ ہماری شنید میں ابھی آیا ہے کہ چیف منسٹر بلوچستان کو بھی اسلام آباد میں طلب کیا گیا کل کہ اس اجلاس یا اس سودے کے حوالے سے. ایک چیز میں آپ دوستوں کو کلیئر کر دوں کہ چیف منسٹر کو بھی سب سے پہلے اپنی اسمبلی کو اور بلوچستان کے اسمبلی اور اس کو کیبنٹ کو اعتماد میں لے کر اس سودے پہ جانا چاہیے تھا یا اس عمل کا حصہ بننا چاہیے تھا، لیکن چیف منسٹر سننے میں آیا کہ تربت سے سیدھا گئے اسلام آباد، اور انہوں نے بھی نہ اسمبلی کو اعتماد میں لیا ہے، نہ کیبنٹ کو اعتماد میں لیا ہے، نہ بلوچستان کے جتنے اسمبلی کے ممبران ہیں نہ ان میں سے کسی کو یہ پتہ ہے، نہ بلوچستان کے غریب عوام کو یہ پتہ ہے کہ سیندک کا سودا جو ہے وہ کس کے ساتھ ہونے جا رہا ہے اور کن شرائط پہ ریکارڈنگ کا جو ہے وہ سودا ہونے جا رہا ہے. تو کوئی بھی جیسے ملک نصیر نے کہا کہ کوئی بھی اس طرح کا عمل اگر ہوا تو اس سے ہم بلوچستان اسمبلی اور بلوچستان کے عوام ہم اس کو نہ اون کریں گے، نہ اس فیصلے کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہوگا، نہ ہم اس فیصلے کا پابند ہوں گے، اور ہر فورم پہ ہم اس مسئلے کو اٹھائیں گے. سپریم کورٹ کی ڈیٹیل ججمنٹ ہے، ہو سکتا ہے ہم سپریم کورٹ کا دروازہ بھی اس میں کھٹکائیں، اور ہم اسمبلی فلور پہ بھی کل ہم نے قرارداد جمع کر دیے، کل ہم اسمبلی فلور پہ بھی ہم اس کی مذمت بھی کریں گے، اور ہم اس جو ہونے جا رہا ہے کل ہم اس کی مخالفت بھی کریں گے، اور اسمبلی سے باہر بھی کریں گے، اسمبلی کے اندر بھی کریں گے، اور ہو سکتا ہے ہم عدالت کا دروازہ بھی کھٹکائیں. اور ہم یہ مقتدر قوتوں کو جو یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، آج آپ صحافی حضرات اور میڈیا کی توسط سے ہم ان کو یہ میسج کنوے کرنا چاہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے لوگوں کی مرضی کے بغیر اگر وہ کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو وہ یہ عمل نہ کریں، اور اگر وہ یہ عمل کریں گے تو اس کے پھر جو نتائج ہوں گے اس کی ذمہ داری بلوچستان پہ اور بلوچستان کے عوام پہ نہیں ہوگی. شکریہ. جی شکریہ. میرے دوستوں نے ڈیٹیل بات کی.
संदक के हवाले से हो या रेकोदिक के हवाले से हो, बलूचिस्तान के सरमाए ये है कि जिनको लूट के इनको मुख्तलिफ लोगों के साथ बैठ के, और कल का जैसे सुनने में आया है कल भी कोई मुआहदा कर रहा है रेकोदिक को बेचने का। तो इसके लिए हम बलूचिस्तान के अवाम जितने भी लोग हैं, और ख़ासकर मैं हमारे अपोजिशन के दोस्तों का और हमारे असम्बली में जितने भी हैं जो अपोजिशन में है या दूसरे बेंचों पे बैठे हुए, हम सबको यही कह रहे हैं कि कल इसके लिए हम एहतजाज भी कर लेंगे और हमने करारदाद पेश की और असम्बली में हम इन चीज़ों को उठा लेंगे। क्योंकि जिस तरह बलूचिस्तान के सरमाए का सौदा करके फिर इसी सौदे को मेरे ख्याल में 10-15 साल 20 साल 25 साल तक इसी सौदे को वो खींचते जाएंगे। और सुनने में ये आया कि जो पहले जो शेयर था बलूचिस्तान का उसको भी कम कर रहे हैं, जो पहले का शेयर था उसको भी कम करके किसी मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट गुजर गया, अभी भी गवर्नमेंट चल रहा है, गुजर गया किसी हद तक इसको किसी नतीजे पर इन्होंने पहुंचा दिया है। कहाँ सौदा किया है, अमेरिका में किया, यहाँ किया, किसके साथ सौदा किया है, इन्होंने सौदा अपना बना के सब कुछ बराबर करके सिर्फ कागज़ी कार्रवाई के लिए अभी वो लेके आए हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि, और हमारा कहना भी ये है कि कम से कम बलूचिस्तान असम्बली को एतमाद में लेना चाहिए। हमें यहाँ इन कैमरा ब्रीफिंग दिया जाए और हमें बताया जाए कि जी रेकोदिक का सौदा किसके साथ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अगर बलूचिस्तान के मुफाद में है, हमारे अवाम के मुफाद में है, बलूचिस्तान के मुफाद में, बिल्कुल हम भी उनके साथ हम कर लेंगे। लेकिन ये है कि चोरी छुपे इस्लामाबाद में बैठ के 18वीं तरमीम के बाद ये हक हम लोग का बनता है, ये बलूचिस्तान का हक है, ये सूबों का हक है। अगर हम अपने हक के लिए बात नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे, तो हमारे बच्चे और हमारी नस्लें हमें इसके लिए बददुआएं देंगे कि हमारे बच्चों ने और हमारे बड़ों ने, हमारे लीडरों ने और हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने हमारे लिए क्या किया है। तो मेरी गुजारिश ये है कि हमें इन कैमरा ब्रीफिंग दिया जाए इस पर, और हमें एतमाद में ले ले। भले बलूचिस्तान के हक़ में अगर होगा तो उसके बाद हम सब मिलके दस्तखत करेंगे उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है कि हम कोई बलूचिस्तान के मुफाद में कोई फ़ैसला नहीं करें, लेकिन चोरी छुपे हम कोई फ़ैसला होने नहीं देंगे। सर 18वीं तरमीम के बाद तो मेरे ख्याल में ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। जी बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इन कैमरा ब्रीफिंग दे, मतलब ये डिमांड तो आपको अपने चीफ मिनिस्टर से करना चाहिए। अपना चीफ मिनिस्टर इसलिए कह रहा हूँ कि आपने जाम कमाल खान को ओवरथ्रो करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। BNP मेंगल एंड JUI पे कुदूस बिजंजो को लाने वाले आप ही हैं, यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ साथ। तो किससे गिला करेंगे सर? मेरे ख्याल में हमने फेडरल गवर्नमेंट से मुतालिबा नहीं किया। हमने कहा कि अगर इस किस्म का कोई मुआहदा होने जा रहा है तो बलूचिस्तान के अवाम और बलूचिस्तान असम्बली में हमारे नुमाइंदों को एतमाद में लेकर इन ब्रीफिंग, तो हम सूबाई हुकूमत से जिनके साथ ये इख्तियार है वहाँ के हमें जिनके साथ अगर ये मालूमात है वहाँ की यहाँ पे शेयर करें। और उसमें अलीशा साहब एक चीज़ मैं आपके सामने, चूँकि मीडिया के तमाम ज़िम्मेदारान बैठे हैं, मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि 18वीं तरमीम की बाज़ शिकों पे अभी तक मनोअन अमल दरामद शुरू नहीं हुआ है, और इसको भी इसी तरह इसीलिए उन्होंने डार्क में रखा हुआ है और इसको साइलेंट रखा हुआ है। इसीलिए इसके मुआहदात जो है ये इस्लामाबाद में फ़ेडरल गवर्नमेंट के कंसर्न के साथ हो रहे हैं। हमारा मुतालबा भी बेसिकली यही है कि 18वीं तरमीम की जो असल रूह है उसके मुताबिक 18वीं तरमीम की जो डिमांड्स हैं या 18वीं तरमीम की जो आर्टिकल्स हैं उसके मुताबिक ये मसला ये प्योरली प्रोविंशियल एक सब्जेक्ट है। तो इसको सूबे को और बलूचिस्तान असम्बली में इस मसले को लाकर बलूचिस्तान असम्बली के थ्रू जिसके साथ भी मुआहदा करना है, जो भी एग्रीमेंट साइन करने हैं, जो भी MOUs साइन करने, वो बलूचिस्तान असम्बली से मामला को डिस्कस करने के बाद कर लें, ना कि इस तरह चोरी छुपे CM को या किसी वज़ीर को अकेले जाके इस्लामाबाद में मुक़्तदिर क़ुव्वतों के साथ बैठ के इस मुआहदे को साइन करें। हमारा मुतालबा भी यही है कि 18वीं तरमीम के बाद ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, इसको पहले सूबाई असम्बली में इस पर डिबेट होनी चाहिए। सूबाई असम्बली के मेम्बरान को पता होना चाहिए कि मुआहदा क्या है और किसके साथ हुआ है, कितने का मुआहदा हुआ है, किन शराइत की बुनियाद का मुआहदा हुआ है। उसके बाद अगर कोई MOU साइन होता है बलूचिस्तान असम्बली की कंसेंट से वो मुआहदा साइन हो। एक मिनट जी। कंपनी जो थी जिनके साथ माजी में जो हुआ, फिर हम इंटरनेशनल कोर्ट में भी गए, वहाँ से भी केस आ रहे, तो उसके बाद हमने आउट ऑफ कोर्ट जाके वो एक फैसला हुआ। तो ये बताइए कि ये कंपनी आपकी जो मालूमात है कि ये कंपनी वही है जिनके साथ मुआहदा माजी में होता है या कोई नई कंपनी? इसीलिए तो हम ये मालूमात चाह रहे हैं। हम आपकी तरह हैं तो अपोजिशन अरकान हैं, जिस तरह आगा साहब ने फरमाया
कि ये आप फेडरल गवर्नमेंट से वो करें, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट हमें तो मालूमात चाहिए। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मालूम है यस वो हमें इन कैमरा ब्रीफिंग दें, अगर नहीं है तो जिसके साथ जो भी इसका कंसर्न है या इसको अपने आप को सो कार्ड गैर कानूनी मालिक समझता है वो बात करें। तो ये सारी चीज़ें जब सामने आएंगी फिर हम इस पोजीशन में होंगे कि आपके सामने रख सकेंगे कि पहले क्या हुआ, क्यों हारे, कितने पैसे गए, अरबों रुपए तो उस वक्त भी खर्च हुए। ये सारी चीज़ें आने चाहिए सामने, आपके सामने भी आनी चाहिए, हमारे सामने भी आनी। मलिक साहब, जिस तरह शाह साहब ने कहा था कि कुद्दूस को जुजू खिलाने में आप लोगों का बड़ा किरदार है, लेकिन लांगो साहब ने भी कहा था कि वज़ीर आला बलूचिस्तान या एतमाद मेहदी के बगैर चले गए थे। तो क्या शुरू में उन्होंने आप लोगों को धोखा दिया, तो मज़ीद आने वाले में भी आप लोग साथ चल सकती है वो यहाँ से अच्छाई तौक़ात रखे? देखें ये गवर्नमेंट की बात, हम तो अपोजिशन के अरकान हैं, हमने उस हद तक यकीनन उनका साथ दिया कि जान साहब को ख़त्म करने के लिए, वो जहाँ जिसको ये मुश्किल दरपेश होगी हम फिर साथ देंगे। लेकिन जब हुकूमत में गए तो हम वजारतों में तो हम नहीं गए, हम तो बैठ गए अपोजिशन में, हमारे BNP और JUI के लोग आपके सामने बैठे हुए। तो अब वो हुकूमत में जाते हैं, अब वो उनका मसला था, वो हमें अगर एतमाद में लेते, लेकिन हम ये कहते हैं कि इस बारे में हम जानना चाहते हैं। वो अब हुकूमत का हिस्सा हो गया, हम अपोजिशन के लोग हैं। बाकी उसमें मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि बाकी कुद्दूस बिजंजो के साथ हमारा जो कुछ मामला थे पिछली गवर्नमेंट के, उनके साथ इख्तलाफात थे, हम अपोजिशन में थे, हमने टॉपल किया, कुद्दूस आ गया। अब कुद्दूस के साथ हमारा इस तरह का कोई मुआहदा नहीं हुआ कि कल कुद्दूस को बलूचिस्तान के वसाइल का सौदा करे, फलाना करे, हम खामोश रहेंगे। बलूचिस्तान के वसाइल के ऊपर, बलूचिस्तान के लोगों के हकूक़ के ऊपर, बलूचिस्तान के जो साइल और वसाइल के ऊपर कुद्दूस हो, कोई भी हो, कोई भी गैर कानूनी गैर आइनी काम करेगा और इस कंप्रोमाइज़ करेगा, इनके वसाइल को बेचने की कोशिश करेगा, हम अपोजिशन हम उसके सामने दीवार की तरह खड़े रहेंगे। ये थोड़ा सा बताएं, अब लगता तो ऐसा है कि कल वो MOU साइन करने जा रहे हैं, CM वहाँ पे बैठा है। अब अगर वो वहाँ पर MOU साइन करते हैं, इसके बाद आपका CM बलूचिस्तान के साथ रिलेशन कैसा होगा? क्योंकि ये बलूचिस्तान की नस्लों का मसला है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का या ज़िला चारी का मसला नहीं है, पूरे सूबे का मसला है। तो ज़ाहिर है आप अपोजिशन है, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है, आपकी रिलेशनशिप फिर इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे। हम इन हुकूक के लिए हम लड़ते रहेंगे। ये जो जिस तरह हमने पहले भी कहा कि ये हुकूक हैं, हुकूक के लिए हम लड़ेंगे जिस हद तक जाता है। बाकी इनका मायदा होता है तो उसको भी हम कंडेम करेंगे, अपोजिशन का जो रोल है वो हम अदा करेंगे। मलिक साहब, अगर वज़ीर आला साहब ने मायदा कर लिया तो फिर आप लोगों का अमल क्या होगा? क्या आप इसकी हिमायत ख़त्म करेंगे, मुखालफत करेंगे या मज़ीद इस साथ चलेंगे? हमने एक चीज़ क्लियर किया था मलिक साहब, हमने एक चीज़ क्लियर किया था कि हमारा किसी के साथ कोई ज़ाती अनात नहीं है। बलूचिस्तान के मुफादात के ख़िलाफ़ जो भी जाएगा हम उसके साथ उसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद भी करेंगे, हम उसको रजिस्ट भी करेंगे, हम इसके ख़िलाफ़ असम्बली में भी उठेंगे, हम इसके ख़िलाफ़ कोर्ट भी जाएंगे। अगर कोई गैर आइनी और गैर कानूनी कोई मुआहदा होता है और अगर कोई ऐसा मुआहदा जो 18वीं तरमीम के जो आर्टिकल्स हैं या जो आइनी तरमीम हुआ है उस आइनी तरमीम के बरखिलाफ़ कोई काम होता है, हम उसके ख़िलाफ़ असम्बली में भी खड़े होंगे, हम इसके ख़िलाफ़ अवामी इज्तिमात भी करेंगे और हम उसके ख़िलाफ़ अदालतों के दरवाजे भी खटकेंगे। असल में ये बताइएगा कि क्या इतना गैप आ गया है अपोजिशन और हुकूमत की मोहब्बतों में कि आपको अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत पड़ी? आपने अज़ खुद जो है वो कुद्दूस साहब को अपने रिजर्वेशन से आगाह नहीं कर सके? देखो ये मेरे ख़्याल में ये अभी तक हमारे शुनीद में है किस किस्म का फ़ैसला होने जा रहा है। मलिक साहब ये सवाल तीसरी दफ़ा रिपीट होकर यहीं पे आ रहा है, हम अपोजिशन का हिस्सा है। अगर बलूचिस्तान के हवाले से बलूचिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ कोई भी फ़ैसला हो हम अपना किरदार अदा करेंगे, चाहे वो असम्बली हो, असम्बली के बाहर हो, अदालतें हो, किसी भी फोरम पे। जिस हद तक हमने इस हुकूमत को पिछली हुकूमत को गिराने में हमारा बिल्कुल एक किरदार था, जिस हद तक था उसके बाद फिर हम अपनी वापस अपोजिशन की पोजीशन पर आ गए। आज अपोजिशन का जो बलूचिस्तान के हवाले से जितने भी बलूचिस्तान के मसाइल हो, बलूचिस्तान की वसाइल का मसला हो, चाहे सेंधक हो, रिकॉर्डिक हो, चाहे हमारी ग्वादर CPEC का मसला हो, उस पे अपोजिशन का जो किरदार है वो उसी तरह अपने अपोजिशन का किरदार अदा करता रहेगा। सर, आप लोगों की जमातें मुआहदा कल होने जा रहा है तो फिर तो कुछ नहीं बचेगा। हमने यही आवाज़ आपके सामने रखी जो हमें पता चला, भी उसके हक़ाइक़ अभी तक हमें नहीं मालूम।
शायद आपको भी नहीं मालूम इसके क्या शरायत। आप मीडिया वाले, आप लोगों से भी हम यही सवाल करना चाहते हैं कि हमें सिर्फ ये आप हक़ाइक़ हमसे ज़्यादा बताए बाखबर है, आप लोगों तक ये बात पहुंची है नहीं पहुंची है। हम तो ये है कि हम तक जो जब पहुंचा हमने आपके सामने लाया। आप हमसे ज़्यादा बाखबर है बलूचिस्तान की तमाम मीडिया। आपसे ये सवाल है, आप बताएं आपको इस किस्म की कोई सुबह से हम भी थोड़े बहुत कॉल्स हमारे पास गया इस्लामाबाद से, यानी आप थोड़ा सा तो फिर भी हम आपसे पहले की बाखबर है, फिर भी ये बिल्कुल ठीक है, आप खबर है। वैसे जो कुलीग ने सवाल किया, आपको तो एक हफ्ता पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था। तो हमने कहा। देखिए अलीशा, मैं उसको थोड़ा सा क्लियर, मैं थोड़ा सा अभी पता चला या हफ्ता पहले पता चला, ये तो डिबेट अलग है। आप चूंकि पीडीएम का भी हिस्सा है, नेशनल असेंबली में है, सेनेट में है, जो पीडीएम की लीडरशिप है उनसे भी टेकअप करेंगे इस मसले को। मैं अभी इसी पे आता हूँ। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, जैसे मीडिया को अंधेरे में रख के ये काम करने की कोशिश की जा रही थी बंद दरवाज़ों के पीछे, इसी तरह बलूचिस्तान की आवाम को, बलूचिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों को भी अंधेरे में रख के ये चोरी छुपे और बंद दरवाज़ों के पीछे ये काम होने जा रहा था। अब चूँकि रात को ये चीज़ें पता चली हैं, हमें सुबह हमने अपनी मीटिंग की है, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, हमारी लीडरशिप को भी हमने इस हवाले से ऑलरेडी हमने उन तक ये बात पहुँचाई है। अब नेशनल असेंबली और सेनेट के जब इजलास होंगे ज़रूर वहाँ पे भी ये मसला उठेगा, और पीडीएम के प्लेटफार्म से जो भी प्रोग्राम आइंदा किए हैं हमारे, उन सब में ये चीज़ उठेगा, और पीडीएम की लीडरशिप शायद इस मसले पे बैठ के कोई अपना एक लाएअमल भी बना ले और कोई इसमें फैसला भी कर ले।